Okay, hello and welcome again. So, in the last session, we have discussed how the CNN architecture can be implemented using the Python code. Also, we have seen how to use teachable machine, that is, programming less platform for CNN, where we can train the CNN model and we can easily develop image processing stuff within few minutes. And that platform does not need not even a single line of code to build the CNN model. Just you will have to drag and drop some images over there, just upload the images, and once you successfully upload all the images, you will be able to train your model. And again, as per the training is concerned, it's very straightforward. You got some opportunities, some features that you can adjust, such as batch size you can control, learning rate of the optimizer function you can control, and the epochs you can control, how many times you want to repeat the training process, that you can control. And by single clicking, you will be getting the accuracy and loss curves, also the confusion metrics for the particular application. And also we have seen how we can build the CNN model, and for that purpose we have used cnn underscore train.py wala file. Before the teachable machine, we have actually trained our model using the coding, and that was the learning or the learning approach or the training approach from the scratch. So we started from the scratch and everything we designed. So we added number of convolution layers, and we actually designed our architecture, how many convolution layers are required, how many filters are required, everything we defined. And based on that, we built a convolutional neural network, and that was used to train the brain tumor dataset. And at the end, we evaluated the performance of it, and we found that accuracy around 66%, or roughly you can say 65% accuracy we obtained from that. And when the same dataset was trained on the teachable machine, we got the accuracy around 80% more than that. And for the training dataset we got around 90%, and for the testing dataset we got around 80% accuracy. And that was quite impressive. Now another approach is the transfer learning. So whatever we have seen, that was learning from the scratch, so it started learning the model from the scratch. Now another approach is transfer learning. Now what is transfer learning? Here the model is previously trained to do something, to do some task, and the same model will be used to classify something different. Now as far as the transfer learning is concerned, the ImageNet models are generally used, and that are GoogleNet, VGG16, Inception, V3, V1, and even the VGG19 model is there. AlexNet is there, GoogleNet is there. So these are some standard architectures of CNN. Now, what is architecture? Now, if I open this file, the CNN model that we have created. So this is nothing but architecture. How many convolution layers you are adding? So 32 number of filters and all those things. So this is our custom architecture. So similarly, number of researchers across the world have developed their own custom model. Number of universities also developed their model, and they may be having 16 number of convolution layers, maybe 10 number of convolution layers. Pooling could be different thing, and number of filter they are using, they could be having some different data. So in that case, the though it is CNN convolutional neural network, but that is the custom architecture. They are having different number of layers of convolution, different layers of pooling, and finally at the end they have evaluated that model for greater accuracy. And now such architectures are called as pre-trained convolutional neural networks, or pre-trained CNN models. Now few examples are VGG19, VGG16, or even the AlexNet, GoogleNet, Inception. So these are the models that can be used to classify the data, and they are pre-trained to do something. Now, what is the problem? Problem is whenever you are having less data, small amount of data. Let's say in our case, we are only having roughly 300 to 400 number of images, 253 number of images in the training set, or sorry, in the tumor wala thing, and only 53 number of images we are having in case of
or 98 number of images we are having in case of non-tumor wala thing. So in that particular case, around we are having 250 to 300 number of images only. These number of images are very much small when I consider classification problem or the CNN architecture, and that was the problem why we received lesser accuracy in case of CNN training wala code. In this code, we got around 65% accuracy. That was very much less. And the problem was with the dataset. Dataset was very small. So although we used the another some techniques called image augmentation to form the multiple copies of the images, but still it will be having a lesser accuracy as the number of images are very small. At least 1000 images per category can be considered as a good approach or the good thing if I consider training the deep learning model as it is deep learning. So at least 1000 images per category can be the good thing. So what they have done, the standard architectures of CNN, like as we are talking about transfer learning, so agenda for the today's session is transfer learning. We are going to understand what is transfer learning in today's session. Now that is nothing but that transfer learning is nothing but some people have developed their CNN architectures and they have trained that on something, some another data set, and that data set is mostly ImageNet data set is used. ImageNet. Now this ImageNet data set is actually having 1000 number of categories. Now consider in case of brain tumor detection, how many categories we are having? Only two, tumor and no tumor. But this ImageNet dataset is having 1000 number of categories, and these are different object, maybe dog, cat, table, fan, balloon, and so on. Such 1000 number of categories are there in ImageNet dataset. So that means ImageNet dataset contains 1000 number of folders, and every folder will have different images. Some folder will have cat, some will have dog, and so many images in that. And how many total number of images are there? Total number of images are 14 million number of images. So around 14 million plus number of images. So you can imagine how many images are there. 14 million. So that means per category around 1500 number of images are having, that data set is having, and such 1000 categories are there. So total 14 million images are there. On these 14 million images, the researchers have trained their models, and they have standardized their models, and these models are called as pre-trained CNN models. And the examples are VGG16, VGG19, or even the AlexNet, GoogleNet. These are the names of such model. Even the MobileNet. These are some names of such models. So they have standardized such models, and they have trained their models on ImageNet dataset, which contains 14 million images and 1000 categories. So, in order to train that model, high end GPUs and processing power is required. And these researchers, or these are actually, now as far as coming back to, if you consider VGG model, this is also called as Oxford Net model, and it is from the Oxford University. So they have trained their model. So they are already having such resources available with them, so they can train that model. And they have literally they have trained for few days. They have operated their computer for few days, and after that they have standardized their models. And now fortunately we can directly make use of all such models in our project, and we can actually use the transfer learning concept. That means now first of all we'll be talking about VGG19 model only, or 16 model. Now this is from the Oxford University. They have trained on the image dataset, ImageNet dataset, which contains 1000 category. So that means that VGG16 model or the Oxford Net model, which is the CNN model of Oxford University, is already trained to classify 1000 number of images, 1000 number of images. So it is very much experienced. That model is very much experienced in terms of classification of images. Now that experience we will use to classify brain tumor. So what we are going to do, we are going to use
the experience of the pre-trained model to classify brain tumor. Now you will see, you will ask that VGG16 or the Oxford Net model is not actually trained on the brain tumor dataset. So it is definitely not trained on brain tumor dataset, but it is trained on something different. So how it can be used? So it can be used by changing something in that model. So what we will do, we will be keeping some layers as it is, most of the layers as it is. We will not change the weights and biases or the value adjustment for some layers, and for some layer we will adjust some values. So we'll modify some layers of that model only, and once we will modify some layers of that model will be useful to us, and it will classify our objective whatever we want to do. So now in this case we want to classify the brain tumor, so it will be doing, or it can do the classification of brain tumor in that particular case. So for that purpose, VGG16 model we are going to use in today's practical. Now this is one approach. If I want to classify the something different which for which the model is not trained, that means VGG16 ये जो मॉडल है वो ट्रेन हुआ है 1000 नंबर ऑफ इमेजेस पे या फिर 1000 कैटेगरीज पे जिसके अंदर 14 मिलियन नंबर ऑफ इमेजेस है. Okay, 14 million. Sorry, I made mistake. That 14 million, that means 14,000 images per category है उसके अंदर. Roughly 14,000 category images है per category. So you can imagine how much huge the data set is. तो उस पे वो ट्रेन हो चुका है ऑलरेडी. तो दैट मीन्स इमेज क्लासीफाई कर सकता है. तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है ब्रेन ट्यूमर क्लासिफाई करना, लेकिन ये जो मॉडल है डेफिनेटली ब्रेन ट्यूमर पे तो ट्रेन नहीं किया है, वो अलग है, या फिर ये 1000 जो कैटेगरीज है उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर का कोई भी इमेज है नहीं, कि वैसे कोई कैटेगरी है नहीं, तो फिर मैं उसको इस पे कैसे यूज कर सकता हूँ? तो मैं क्या करूंगा, वो जो पूरा मॉडल है उसमें डेफिनेटली कन्वोल्यूशन लेयर होंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन स्टेज होंगी और क्लासिफिकेशन का भी स्टेज होगा. तो मैं क्या करूँगा, उसमें का थोड़ा-सा जो पार्ट है वो मॉडिफ़ाई करूँगा मेरे मॉडल के हिसाब से और मेरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और बाकी का जो भी उसके वेट्स है, वो एज़ इट इज़ रहेंगे। उसका सारा वेट एज़ इट इज़, जो भी उसके वेट्स एंड बायस वैल्यूज़ है या फिर जो भी मॉडल के बाकी के जो भी वैल्यूज़ है, वो एज़ इट इज़ रहेंगे। क्या चेंज होगा? लास्ट लेयर सिर्फ़ चेंज होगा, क्योंकि लास्ट लेयर में उसके 1000 कैटेगरीज़ होंगे तो 1000 नोड्स होंगे। अब मेरे दो ही कैटेगरी है तो आई विल बी हैविंग ओनली टू लेयर्स. सो ओनली टॉप लेयर, टॉप मोस्ट लेयर्स आई विल बी मॉडिफाइंग. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज. ओके, सो दैट्स वन थिंग. इस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं. दूसरा यूज किस तरह से कर सकते हैं? मान के चलो कि ये जो इमेज नेट मॉडल है दैट इज ऑलरेडी ट्रेन टू क्लासिफाई 1000 इमेजेस, एंड नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज टू क्लासिफाई फ्रूट्स. फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने. तो जो फ्रूट्स है वो उसके वो 1000 में ही कुछ फ्रूट्स के कैटेगरीज भी उसके अंदर है. लेट्स से मैंगो है, बनाना है, चेरी है, एप्पल है. ऑलरेडी उस पे वो ट्रेन हो चुका है. तो इन दैट केस मुझे मॉडल को फिर से मॉडिफाई नहीं करना है. मुझे क्या करना है, जो भी मेरा, और मॉडल को ट्रेनिंग भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ट्रांसफर लर्निंग नहीं करना है. सिंपली मुझे जो नया इमेज है वो उसको देना है और वो क्लासिफाई करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो करने को सक्षम है. 1000 के लिए है, 1000 में से मुझे 2-3 ही करने हैं, सो दैट्स टोटली फाइन. ओके, तो वो उस तरह से भी उसका यूज़ कर सकते हैं. सो इन 2 वे वी कैन यूज़ आवर मॉडल. एक तो हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, या फिर ऑलरेडी जिस काम के लिए वो ट्रेन है, अगर डेफिनिटली 1000 इमेजेस तो हमें क्लासिफाई नहीं करने होंगे हर बार. हमें कुछ ना कुछ, लेट्स से फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने होंगे, एनिमल आइडेंटिफाई करने होंगे, तो एनिमल्स के भी उसमें कैटेगरीज होंगे आउट ऑफ 1000. तो हम उसमें से कुछ कैटेगरीज पे ऊपर वो ट्रेन कर सकते हैं. ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, डायरेक्टली उसको यूज करना है तो उसको यूज कर सकते हैं. तो आज हम दोनों तरीके को देखेंगे किस तरह से हम इसके अंदर यूज कर पाएंगे. Now for that purpose I will be creating new Python file, and for that I will be giving some name, transfer learning dot py. And as usual the first step is loading the library. So we will be loading some libraries. So as usual we will require the keras library, but
we will not load convolution, pooling, and ReLU kind of things. Okay, what we will be loading, only output side will change, because the first phase, which is the feature extraction step, that we will keep unchanged. तो शुरू के कुछ जो लेयर्स है, बेसिक लेयर्स है, वो हम अनचेंज रखेंगे, उसमें कुछ चेंजेस हम नहीं करेंगे। जो लास्ट वाला लेयर है, एंड वाला लेयर है, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है और नंबर ऑफ कैटेगरीज उसके अंदर डिपेंडेंट होती है, सिर्फ हम उतना ही चेंजेस करेंगे, बाकी हम कुछ चेंज उसके अंदर नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें हो सकता है कि डेंस लेयर और फ्लैटनिंग लेयर की जरूरत पड़े, तो वी विल बी लोडिंग दैट लेयर्स। सो फ्रॉम eras dot layers import, यहाँ पे हमें अलग अलग लेयर्स इनपुट करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी इनपुट लेयर को लोड करता हूँ, देन एक लैम्बडा लेयर चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल बी लोडिंग हियर। एक्चुअली इट विल नॉट बी यूज आई थिंक। डेंस एंड देन फ्लैटन। ओके, तो ये हमें लगेंगे क्योंकि हम उसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं। सो ऑल दिस स्टफ वी आर नीडेड। एंड देन मॉडल भी हमें चाहिए होगा। सो केराज डॉट मॉडल्स import model, and from keras dot applications dot, अभी हम यहाँ पे in this particular practical we'll be talking about VGG16 only, but same principles are applied to AlexNet and other GoogleNet and MobileNet models. Okay, now I will be using VGG16, but the same thing is applied to other models as well, same principles. VGG16 या फिर VGG19 you can take. Import VGG16, right? And then to now these things for the building the model, and this is for the layer, this is for the model, and this is the particular architecture of the CNN, that is VGG16, and sometimes it is also called as Oxford Net, as it is from the Oxford University. And now again, in order to pre-process the input, now what is pre-processing of input? इनपुट प्री प्रोसेसिंग मतलब जब हमने उसको नॉर्मलाइजेशन किया था या फिर उसको एरे में कन्वर्ट किया था एंड ऑल दो स्टफ, सो दैट इज प्री प्रोसेसिंग। तो वो प्री प्रोसेसिंग हम उसके लिए भी कुछ फंक्शंस इंपोर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड प्री प्रोसेसिंग फॉलो करेंगे। लास्ट टाइम हमने मैन्युअली किया था, अब की बार हम स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज करेंगे। डॉट VGG16 अगेन import प्री प्रोसेस इनपुट। ना ये जो प्री प्रोसेस इनपुट है ये क्या करेगा कि VGG16 मॉडल के लिए जिस फॉर्मेट में इनपुट चाहिए होगा उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिकली ये फंक्शन। इसके अंदर वो कोडिंग ऑलरेडी होगी, मे बी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हमने किया था, शेपिंग एंड रीशेपिंग हमने देखा, तो वो सब कुछ वो ऑटो कर लेगा, हमें उसकी कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो ये उसके लिए हम ये फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। then again we'll import some functions related to image data generator, क्योंकि हमें डेटा सेट को लोड तो करना ही पड़ेगा इस वाले केस में भी। तो फिर इमेज डेटा जनरेटर एंड इमेज ऑगुमेंटेशन का भी कॉन्सेप्ट हम थोड़ा इसके अंदर यूज करेंगे। तो ऑल दिस स्टफ विल बी लोडिंग। सो फ्रॉम keras dot pre processing import first of all image, and from the same library keras dot pre processing import इमेज डेटा जनरेटर। ओके, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, इमेज डेटा जनरेटर, right? So this thing we are supposed to use in our project, so that will be doing the image augmentation kind of thing। तो ये हो गया, उसके लिए ये चलेगा हमें। and finally the sequential convolutional neural network, that what we need, so we can import that from keras dot models के अंदर था वो।
import sequential. Okay, so this is sequential convolutional neural network. और कुछ अलग other libraries we will try to use such as the NumPy library, NumPy as NP, ये हमें लग सकती है। और files and folders को ये करने के लिए this glob library will be required. This will be browsing. This is for the browsing the files and folders. Okay, so and the matplotlib for the plotting the performance of our neural network. Dot pyplot as plt. Okay, so I think इतने libraries हमारे लिए sufficient होने चाहिए। जो कि कुछ लाइब्रेरीज हम लेट्स से फोल्डर में से डेटा उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पाइप्लॉट और नमपाई के लिए है, ये सारे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क रिलेटेड तो लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो हम इनिशियली इतना एज्यूम कर लेते हैं कि इतना लगेंगे, आगे कुछ अगर लगा तो उस टाइम मैं उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूँगा। नाउ वी कैन डिफाइन सम पैरामीटर, सम वेरिएबल्स। सो पहले तो लेट्स से इमेज का साइज मैं डिफाइन करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इमेज साइज। एंड एज यूजुअल हमें पता है कि 224 बाय 224 होना है उसका साइज। That will be the size of that image, and the same size is actually used by the VGG16 model to train the images. So that's how I am again preferring the same size over here. Then यहाँ पे ट्रेनिंग का पाथ क्या होगा? सो ट्रेन पाथ यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, एंड ये होगा मेरा माई डेटा फोल्डर है, जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने ये यूज़ किया है। उसके अंदर ट्रेनिंग सेट करके सब फोल्डर है, राइट? दिस इज माय ट्रेनिंग पाथ। एंड सिमिलरली द टेस्ट पाथ हम एक करेंगे वेरिएबल, टेस्टिंग के लिए कौन से फोल्डर से डेटा उठाना है। सो अगेन यहाँ पे माय डेटा करके फोल्डर है, एंड उसके अंदर टेस्ट अंडरस्कोर सेट, दैट्स द फोल्डर फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लोड दिस। नाउ यहाँ पे अब टाइम है कि VGG मॉडल को लोड किया जाए, तो एक VGG करके एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो इसको, VGG16, एंड इसके अंदर अभी नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें डिफाइन करने होंगे। तो अगर मैं सिर्फ VGG16 करूंगा ना इस तरह से लोड, so that means the entire VGG16 model will be loaded and which contains 1000 number of categories। अगर मैं इसी तरह से इसको लोड करूंगा तो इसका मतलब है कि VGG16 पूरा लोड किया जाएगा, इसके अंदर 1000 नंबर ऑफ इमेजेस होंगी। तो उसको अब सिर्फ डायरेक्ट इनपुट देने की ज़रूरत है, उसको कुछ डेटा सेट वगैरह देके कस्टम ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत है नहीं, उसको सिर्फ इनपुट ही देना होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, लेकिन हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन किया जाएगा, उसमें से कुछ लेयर्स, जैसे कि टॉप लेयर है, टॉप लेयर में आएंगे उसके फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क डेंस लेयर, एंड उसमें जो आउटपुट कैटेगरीज है, आउटपुट में मैंने बताया था कि जितने आपके कैटेगरीज होंगे उतने न्यूरॉन्स वहां पे ऐड करने होते हैं। तो अगर मेरे आउटपुट में सिर्फ अभी दो ही कैटेगरीज है तो 1000 लोड करके क्या फायदा होगा? और क्योंकि 1000 जो कैटेगरीज है उसमें से वो वाली चीजें तो मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उसका मुझे यूज ही नहीं है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी रिमूविंग द लास्ट लेयर, टॉप लेयर जो टॉप है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे और बाकी को लोड करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमें इनपुट शेप देना होगा कि इनपुट शेप हमारा क्या होगा। तो डेफिनेटली हमारा ये इमेज साइज जो है वो अपना, ओके आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ, एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो इमेज साइज है ये अपना, तो दैट विल बी आवर इमेज साइज। एंड उसके चैनल्स, तो एक तो आप यहाँ पे उसको एक ऐड करो पैरामीटर, या फिर मैं यहाँ पे एक नंबर ऑफ 3 चैनल्स है इमेज के, तो इस तरह से दो लिस्ट। नाउ दिस इज लिस्ट कॉन्केटिनेशन, आपको ये पता है कि एक तो ये 3 यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, कॉमा 3 लाइक दिस, दैट्स आल्सो फाइन। तो इन दैट केस यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ इमेज साइज का ही मेंशन किया। तो फिर मैं उस लिस्ट में और एक पैरामीटर ऐड करने के लिए प्लस दिस थिंग, so it will be image sorry, the list concatenation operation, because this is a list and again this will be a list, that will be concatenation of। तो अभी इसको वेट्स मतलब क्या होता है कि जो मॉडल ट्रेन हो जाता है
तो उसके जो न्यूरॉन्स है या फिर नोड्स है या फिर हमने देखा कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स, लास्ट टाइम हमने देखा कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने आते हैं। तो ट्रेनेबल पैरामीटर्स मतलब उनके जो वैल्यूज आते हैं उनको दो टाइप के वैल्यूज बोलते हैं, एक वेट एंड बायस। तो वो वैल्यूज होते हैं। तो जो वेट्स है वो किसके यूज करेंगे? तो हमने लास्ट टाइम खुद से ट्रेनिंग फ्रॉम द स्क्रैच किया तो वेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके खुद से बने। लेकिन यहाँ पे हम वो सब नहीं करना चाहते हैं, हम रेडीमेड यूज करेंगे। तो वो यूज करेंगे हम इमेज नेट का। ओके, इमेज नेट क्या है? इमेज नेट इज द डेटा सेट and that's the actually trained for 1000 number of categories and around 14 million number of images। तो उसके वेट्स हम यूज करेंगे। then include top, include underscore top। तो ये देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंक्लूड टॉप क्या है? ट्रू है। दैट मीन्स सारा लेयर्स वो ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे पता चलेंगे कि क्या क्या हम यूज करें। देखो VGG16 जो ओरिजिनल मॉडल है उसके नंबर ऑफ क्लासेस कितने? 1000। हमें इतने सब कुछ नहीं चाहिए बिकॉज इट्स ऑलरेडी ट्रेन फॉर द 1000 images categories, so we don't need that much, so that's how we'll be doing this and include top true, that means 1000 categories यहाँ पे ली जाएंगी। तो हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे करना होगा इसको false। अगर हम इसको false कर देंगे तो जो टॉप लेयर है उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ये एक अच्छी बात होगी कि उसकी टॉप लेयर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम उसको डिफाइन करेंगे कि मुझे क्या चाहिए टॉप लेयर में। 1000 नहीं चाहिए, दो ही चाहिए क्योंकि मेरे ट्यूमर एंड नॉन ट्यूमर उतना ही है। एंड देन इतना होने के बाद हमें ये डिफाइन करना है कि अभी हम इसको ट्रेन भी करेंगे मॉडल को। वी हैव लोडेड VGG16 मॉडल। VGG16 मॉडल मतलब क्या कि हाउ मेनी कन्वोल्यूशन लेयर, हाउ मेनी पूलिंग वगैरह ये सब कुछ डिफाइन करना। ये जो हम यहाँ पे डिफाइन करते थे ना इतना सब कुछ, ये जो हमने यहाँ पे किया ना, स्टेज 1 किया, फिर स्टेज 2 किया, स्टेज 3 किया, इसके अगेंस्ट, ये सब के अगेंस्ट मैंने एक लाइन लिख दी कि VGG16 लो एंड उसके अंदर ये सब कुछ इतना ही होगा, उसका टॉप लेयर निकालो। तो इसका मतलब है कि वो जो सारा आर्किटेक्चर है कन्वोल्यूशन कितना होगा तो इसके अंदर अलग है कन्वोल्यूशन नंबर ऑफ थिंग्स, विल प्रिंट दैट समरी आल्सो। तो वो सब कुछ कंसिडर किया जाएगा, राइट? और वो सब कुछ लोड किया जाएगा। तो वो सब है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। तो ये सब, ये जो मैंने किया इसकी अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैंने ये आउटपुट लेयर में मुझे डेफिनेटली मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और पर्टिकुलरली ये वाले केस में ये जो डेंस लेयर यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये वाले चीजें मुझे एक्स्ट्रा से उसको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि टॉप लेयर जो है दैट मीन दिस आर द टॉप लेयर्स। इसको मैंने इंक्लूड करा नहीं है, इसको ऐड नहीं किया है, तो इसको मुझे हटाना होगा। तो इसको ऐड करना होगा। ये मैंने इंक्लूड टॉप को फॉल्स किया है तो उसको निकाल दिया है। तो अब मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। बाकी का ये जो सारा है, ये फ्लैटनिंग, ये वाला, या फिर फ्लैटनिंग का भी हम कर सकते हैं यार, मतलब ये इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है हमें। मोस्टली वी आर गोइंग टू डू दिस वन इसके अंदर। बाकी ये जो है फीचर एक्सट्रैक्शन वाला सब कुछ ऊपर का, वो एज इट इज रहेगा। वो कहाँ से लेंगे हम? VGG16 से लेंगे। तो इसका ट्रांसफर लर्निंग का मतलब क्या हुआ कि यहां तक आपने जो भी वैल्यूज के एडजस्टमेंट किए ऊपर वाले केस में, वो आपके एज इट इज रहने दो ऐसे ही। कन्वोल्यूशन लेयर, रेलू पोलिंग, उनके जो भी वैल्यूज है, बायस है, वेट्स है, उसमें कुछ टच नहीं करना है। वो एज इट इज जो इमेज नेट पे ट्रेन हुए वो वही रहेंगे। सिर्फ हम अभी ट्रेन किसको करेंगे? ये जो लास्ट वाले हैं ना, दो तीन, इनको ही ट्रेन करेंगे, इनके वेट्स इनिशियलाइज करेंगे, इनको वैल्यूज अपडेट करेंगे। बाकी का इसका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो एज इट इज यूज किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एंड्रॉयड डेवलपर है जो कि एंड्रॉयड ऐप बनाता है, ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड इन मेकिंग एंड्रॉयड एप्स। तो अब एक कंपनी है जो iOS ऐप बनाती है, आईफोन के लिए एप्स बनाती है, तो वो उसको हायर करना है नया बंदा। तो अभी एक तो उसको, एक तो देखेगा कि उसी फील्ड में कोई मिलता है, लेट से उसके फील्ड में नहीं मिलता है, तो ये एंड्रॉयड डेवलपर उसके पास इंटरव्यू के लिए आता है। तो उस एंड्रॉयड डेवलपर को सारा सिखाना पड़ेगा क्या? ऐप कैसे डिजाइन करना है, सब कुछ। सब कुछ नहीं पढ़ाना है उसको, सिर्फ वो iOS के लिए जो प्रोग्रामिंग लगेगा उस हिसाब से उसको उतना ही ट्रेन करना है। उसका उसको सिंटैक्स अगर आ गया तो उसको ऐप तो ऑलरेडी बनाना आता है, ऐप तो पहले से ही बनाना आता है, उसका लॉजिक तो पहले से ही डेवलप्ड है। उसको सिर्फ सिंटैक्स सीखना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
तो वो उसमें ट्रेन हो जाएगा। तो मतलब उसको पूरा स्क्रैच से ट्रेनिंग नहीं करना है, उसमें से कुछ मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। उसकी पहली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो करता था, उसको हटा के नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उसको सिंटैक्स समझाना पड़ेगा और वो सिंटैक्स सम या फिर जो पहले जो टूल्स यूज़ करता था, उसके अगेंस्ट नए टूल्स उसको सिखाने पड़ेंगे और उतना ही उसको करना है। पूरा करने की ज़रूरत है नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे वीजीजी 16 क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मॉडल है, ऑलरेडी उसने काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो चुका है एंड ऑलरेडी 1000 नंबर ऑफ इमेजेस को क्लासिफाई। अभी इसका क्या ऑब्जेक्टिव है वीजीजी 16 का? इमेज क्लासिफिकेशन के लिए वो ट्रेंड है। दैट मीन्स इमेज क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको एक्सपीरियंस है क्लासिफाई करना। तो अभी भी क्या करना है? इमेज को ही क्लासिफाई करना है। उस टाइम उसको 1000 कैटेगरीज़ थी, अब इसके पास सिर्फ़ 2 कैटेगरीज़ को क्लासिफाई करना है। और अब यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर वाले इमेजेस है, हो सकता है उस टाइम उसको बर्ड्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स के अलग-अलग इमेजेस थी 1000 में। तो ऑलरेडी ट्रेंड है, अब सिर्फ़ उसके लास्ट के कुछ लेयर्स को अपडेट करना है, चेंजेस करना है और वो चेंजेस करने के बाद हम उसको यूज़ कर पाएँगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक्जिस्टिंग लेयर्स हैं, उसको ट्रेन नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे कि डोंट ट्रेन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोंट ट्रेन एक्जिस्टिंग लेयर्स। तो वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उसको एक्जिस्टिंग लेयर जो भी है उसको ट्रेन मत करो। सो फॉर लेयर इन वीजीजी यहाँ पे फॉर लूप लगाएँ क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स है, एक लेयर नहीं है। अदरवाइज़ मैन्युअली भी आप लिख सकते हो कि कन्वोल्यूशन को ट्रेन मत करो, इसको ट्रेन मत करो, लेकिन मैं क्या करूँगा फॉर लूप लगा के उसके सारे लेयर्स को एक ही बार में कर दूँगा। सो लेयर डॉट ट्रेनेबल और है क्या इसका कुछ ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स कर दूँगा, ठीक है? तो फॉल्स होने के बाद उसके किसी भी लेयर का कोई भी वेट एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। जो ऑलरेडी ट्रेन है उसी को डायरेक्टली यूज़ करेंगे। हम कुछ नया उसमें अपडेशन वगैरह नहीं लाएँगे, ओके? तो ये हो गया उसके जो सारे लेयर्स है उसके हिसाब से कर लिया। अभी क्या करना है, अभी हमारे लेयर्स उसके अंदर ऐड करने हैं। तो इस लेयर का इसका जो भी ये जो फाइनल है ना एट द एंड जो कुछ भी होगा मतलब कन्वोल्यूशन, रेलू, पूलिंग करके सब करके वो सब कुछ ऐड करके जो कि हमने सिर्फ़ उसका टॉप हटा दिया है, तो जो बचेगा उसे हम वीजीजी डॉट आउटपुट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? वीजीजी डॉट आउटपुट। वीजीडी डॉट आउटपुट मतलब क्या? उसका पूरा जो कुछ भी है आउटपुट इस लेयर का मतलब इसमें जो भी लेयर्स अभी ये टॉप लेयर सिर्फ़ हमने ली नहीं है, उस पूरे मॉडल के जो स्टैंडर्ड मॉडल है, जो वीजीडी 16 व्हिच इज़ द स्टैंडर्ड मॉडल। ये स्टैंडर्ड मॉडल में से सिर्फ़ लास्ट का जो लेयर है वो हमने लिया नहीं है, बाकी सारे लेयर्स हमने लिए हैं। तो उस सारे लेयर्स का जो भी आउटपुट आएगा उसको बोलेंगे वीजीडी डॉट आउटपुट और फिर इसके अंदर हम एक नया लेयर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे कमेंट डालते हैं ऐड न्यू ऑफ लेयर लास्ट का लेयर अभी ऐड करना है। तो ये आउटपुट क्या होगा? तो उसको फ्लैटन करके लेंगे हम, x हमें मिलेगा ना x इक्वल्स टू तो इसको करेंगे फ्लैटन क्योंकि जो आउटपुट आता है ना फीचर एक्सट्रैक्शन का, सो हम उसको फ्लैटन करते हैं ना, ये तो आपको पता है कि हम उसको फ्लैटन करते हैं। तो जो वीजीजी जो आउटपुट है, ये जो आया यहाँ पे, इसको हम कर देंगे फ्लैटन, फ्लैटन मतलब वन डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देंगे और वो हमें मिलेगा x, तो ये हमें x मिलेगा। फिर हम लास्ट का भी लेयर ऐड करेंगे एंड दैट लेयर्स जो प्रिडिक्शन का लेयर होगा, जो फाइनल लेयर होगा उसको हम बोलेंगे प्रिडिक्शन का लेयर या फिर आउटपुट का लेयर। तो मैं उसको नाम देता हूँ प्रिडिक्शन लेयर। प्रिडिक्शन इक्वल्स टू तो अब यहाँ पे मुझे डेंस लेयर ऐड करनी है। डेंस एंड देन यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चाहिए मुझे? 2 चाहिए एंड उसका एक्टिवेशन क्या होगा? तो लास्ट टाइम हमने देखा कि सॉफ्ट मैक्स हमने यूज़ किया तो अब भी वही यूज़ करेंगे सॉफ्ट मैक्स, ओके? और ये किसको अप्लाई करेगा? एक्स को, एक्स के साथ वो जोड़ा जाएगा, मतलब जोड़ दो। पहले वीजीजी 19 ये जो टॉप हटा के जो कुछ भी नेटवर्क है,
वो मतलब वीजे डॉट आउटपुट, उसका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट, उसको फ्लैटन किया, मुझे एक्स मिला। अब ये एक्स को ये डेंस लेयर के साथ अटैच कर दे अभी, फिर उसके साथ से पास किया तो मुझे ये प्रोडिक्शन के रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड नाउ हमने जो कि नए लेयर्स बनाए हैं, यहाँ पे विल राइट create the model. Now we are ready to create the model. Okay, तो मॉडल को हम क्रिएट करेंगे, तो अभी यहाँ पे एक लाइन में मॉडल को क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट द मॉडल, एंड यहाँ पे मैं मॉडल को मॉडल नाम देता हूँ। एंड एज वी हैव टेकन दिस मॉडल, इसके अंदर इनपुट्स क्या होंगे? तो इनपुट, सॉरी नॉट इनपुट, इनपुट्स इक्वल्स टू, तो जो वीजीजी के जो इनपुट है वो होंगे उसके इनपुट, राइट। और आउटपुट क्या होगा उसका? आउटपुट में हमने चेंजेस किए हैं। आउटपुट इक्वल्स टू ये प्रेडिक्शन जो जिसके अंदर अभी वो फ्लैटनिंग लेयर ऐड कर दी, फिर ये एक्स जो होके ये जो कुछ भी मिला, दैट इज नाउ आवर प्रेडिक्शन, जो लास्ट लेयर। तो यहाँ पे अपना मॉडल बिल्ड होके रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम मॉडल का समरी प्रिंट करेंगे, प्रिंट मॉडल डॉट समरी, तो वी शुड गेट द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आवर मॉडल। तो अब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। Okay, so now we will see कि इसके अंदर क्या क्या है। तो समथिंग समथिंग इज रॉन्ग, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम डेंस। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग में एरर हो गया, दिस थिंग यहाँ पे गलत हुआ। एंड अगेन आई थिंक टॉप में भी मैंने गलत लिखा है। ओके, यहाँ पे भी उसका नेम गलत हो गया। क्लियर कर देते इसको एंड देन रन अगेन। सो फिर से चेक करेंगे, कुछ अगर एरर्स होंगे तो फिक्स कर देंगे। अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन इमेज डेटा जनरेटर के अंदर, कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके, इमेज डेटा जनरेटर, आई थिंक ओके, यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग डॉट इमेज के अंदर है, वो इमेज के अंदर होगा वो। तो फिर से एक बार चेक करेंगे। तो वी आर गेटिंग एरर्स ओनली एट द इंपोर्ट फंक्शन ओनली। ओके, नाउ अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम। कीवर्ड कहाँ पे प्रॉब्लम है? लाइन नंबर 808575, लाइन नंबर 28। ओके, आउटपुट इक्वल्स टू द प्रोडिक्शन, यहाँ पे भी स्पेलिंग एरर हो गया। यहाँ पे जैसे इनपुट्स लिखा है तो उसको आउटपुट्स होना चाहिए वो। या यहाँ पे जैसे दिस इज इनपुट्स, तो ये होना चाहिए आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या है? तो एस लगाना भूल गए थे, इसके वजह से दैट वाज द प्रॉब्लम। लेट्स रन। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ हम देखेंगे यहाँ पे है क्या एग्जैक्टली, ये नेटवर्क एक्रे है क्या। देखो, तो इसका फर्स्ट वाला जो है वो इनपुट है, इनपुट लेयर है, जिसका जो साइज है वो 224 का है। एंड देन कन्वोल्यूशन का यहाँ पे जब एक्ट किया जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे 64 नंबर ऑफ फिल्टर्स वी आर यूजिंग। देन अगेन कन्वोल्यूशन का ब्लॉक है, वो इस तरह से कन्वर्ट करेगा। फिर मैक्स पूलिंग है तो उसको इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से कन्वोल्यूशन है उसके अंदर, फिक्स से यहाँ पे कन्वोल्यूशन 2D है। देन अगेन यहाँ पे मैक्स पूलिंग है, तो इस तरह से हमें मिलेगा। फिर से कन्वोल्यूशन, फिर से इतने सारे कन्वोल्यूशन लेयर्स, फिर मैक्स पूलिंग, फिर कन्वोल्यूशन के 3, फिर मैक्स पूलिंग, और फिर कन्वोल्यूशन, यहाँ पे फिर से कन्वोल्यूशन। तो ये सब कुछ फिर से ये चलता जा रहा है। यहाँ पे 512 आ रहा है, फिर से यहाँ पे मैक्स पूलिंग, तो एट द एंड 7/7/512 ये हमें मिला। एंड उसके बाद हमने ये फ्लैटनिंग लेयर को जोड़ा, ये हमने जोड़ा है। ओके, दिस इज आवर लेयर, ये हमने ऐड किया, क्योंकि ये टॉप के जो लेयर है ना, ये हमने उड़ा दिए थे जब मॉडल को लोड किया, ये हमारे हैं, ये हमने जोड़े हैं। और डेंस में 2 देखो, सो यहाँ पे 2 हमने किए हैं। It's not from the original model, because original model will have 1000 instead of 2। तो हमने यहाँ पे ये हमारे खुद के यहाँ पे जोड़े, और एट द एंड हमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स जो है इतने सारे मिल चुके हैं। एंड सम पैरामीटर्स आर नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स। नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स क्यों?
क्योंकि ये प्री ट्रेंड है। गेटिंग पॉइंट। तो हमने जो लास्ट टाइम जो नेटवर्क बनाया था उसमें नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर 0 आया था, क्योंकि उसको ट्रेनिंग करना ही है वो सबको। यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी ट्रेंड है, ये हमने ऑलरेडी ट्रेन मॉडल में से यूज करने हैं, हमें इसको ट्रेनिंग नहीं करना है। अभी हमने जो नया जोड़ा है, नया मतलब ये जो डेंस लेयर जोड़ा उसके ये 50,000 कुछ तो पैरामीटर्स आए, इतने ही पैरामीटर्स को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो हम ट्रांसफर लर्निंग यूज करेंगे उसका जो कुछ भी नेटवर्क है उसका 90+% जो भी स्ट्रक्चर है वो ट्रेन होके आएगा, और हम सिर्फ उसमें का कुछ पार्ट ट्रेन करेंगे अपने हिसाब से, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, और फिर इसको यूज में लाएंगे। तो दैट्स द मीनिंग। तो एक बार ये प्रिंट होना हो गया, तो इसके बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिंटिंग दिस थिंग। तो फिर से इसको क्लियर करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। अब आगे का जो पार्ट है ना वो सेम ही है, उसमें कुछ यहाँ तक हमने मॉडल बिल्ड किया, मतलब क्या, ये सब कुछ हो गया अपना, यहाँ तक हो गया। अब आगे का जो है वो ये जो स्टेप 3 4 है ये सब अपने हिसाब से ऐसे ही रहेगा, ये सारी स्टेप्स हमें लगेंगी ही लगेंगी। ओके। तो आगे का जो है जो बिल्ड मॉडल और वो सब कुछ हमें पहले जैसा ही लगेगा, जो लास्ट टाइम हमने यूज किया वही, सिर्फ हमने क्या किया कि मॉडल अलग यूज किया, उतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे बिल्ड द मॉडल, कंपाइल आप बोल सकते हो। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे मॉडल डॉट कंपाइल फंक्शन, एंड देन इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन करेंगे कि लॉस क्या होगा। तो लॉस इक्वल टू हमें पता है कि कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी, इट शुड बी स्मॉल, क्रॉस एंट्रोपी, ये हो गया लॉस। फिर उसका ऑप्टिमाइजर, तो लास्ट टाइम हमने एचजीडी ऑप्टिमाइजर यूज किया था, तो उसके लिए हमने ऑप्टिमाइजर डॉट ऑप्टिमाइजर इक्वल टू समथिंग यूज किया था। तो अब क्या करेंगे, कुछ अलग यूज करेंगे, दूसरा ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे, एडम यूज करते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड देन उसका मैट्रिक्स मॉडल का हमें तो पता है कि मैट्रिक्स क्या होगा, एक्यूरेसी, जो लास्ट टाइम हमने यूज किया है वही यूज करेंगे, एक्यूरेसी, राइट। तो इससे अपना जो मॉडल है, समथिंग रॉन्ग विद दिस मैट्रिक्स, करेक्ट है, इट शुड बी करेक्ट, व्हाई इट शोइंग रॉन्ग, या रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं दिया, पैरामीटर्स के सेपरेट करने के लिए कॉमा देना पड़ेगा। ओके। So now your model is compiled or it will be categorical cross entropy। क्रॉस एंट्रोपी का मतलब होता है कि अगर ये ब्रेन ट्यूमर है वो नॉन ट्यूमर दिखाता है और नॉन ट्यूमर को ट्यूमर दिखाता है, so that's nothing but cross entropy, and that's the loss of our model। and the optimizer function will try to optimize, optimization मतलब evaluating or getting the best performance फ्रॉम दी अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे निकलेगा वो ऑप्टिमाइजर का जॉब है। उसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स जैसे कि एचजीडी है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है, या फिर एडम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो होगा। नाउ यहाँ पे हो गया, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इमेज को ऑगुमेंट करना, या फिर इमेज ऑगुमेंटेशन प्रोसेस, जिसके अंदर हम डेटा की साइज बढ़ा देंगे। तो इमेज ऑगुमेंटेशन करेंगे, तो इसके अंदर हम ट्रेन डेटा जनरेटर या फिर ट्रेन डेटा जन वगैरह ऐसे वेरिएबल यूज़ करेंगे जो लास्ट टाइम हमने यूज़ किए थे। सो वही यूज़ करेंगे, ट्रेन डेटा जन इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे इमेज डेटा जनरेटर फंक्शन को यूज़ करेंगे, और इसको रीस्केल करके या फिर उसको शेयर करके, जूम करके, तो वही सब करेंगे। शेयर रेंज इक्वल टू 0.2 करते हैं, देन जूमिंग करके, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस, जूम, शिफ्ट,
कुछ जगह रोटेट भी होंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे इसमें। देखो रोटेशनल एंगल, विड्थ वगैरह 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 वगैरह, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, बहुत सारे पैरामीटर है। तो इतने सारे पैरामीटर्स यूज करके आप उसका अलग अलग इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन जूम, तो 0.2 अलग अलग कर सकते हो। एंड देन हॉरिजेंटल फ्लिप भी हमने एक यूज किया था, तो वो भी यूज करेंगे, उसको ट्रू कर लेंगे। राइट। तो ये हो गया अपना ट्रेनिंग के लिए जनरेट डेटा। एंड सिमिलरली टेस्टिंग के लिए टेस्ट अंडरस्कोर लेट्स से डेटा जन करेंगे। इसको भी इमेज डेटा जनरेटर फंक्शन के थ्रू जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ रीस्केल करेंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज टेस्टिंग के लिए हमें ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए। सो ओनली रीस्केल, दैट्स इट। एंड नाउ द इमेज ऑगमेंटेशन। सो इमेज ऑगमेंटेशन में फिर से एक बार बता देता हूँ क्या है। जब भी आपके पास कम डेटा होता है, ये वाइल इमेज क्लासिफिकेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर, तो हम इमेज ऑगमेंटेशन करते हैं। इसका मतलब होता है कि एक इमेज के मल्टीपल इमेजेस बना के डेटा की साइज बढ़ाना। तो वो मल्टीपल इमेजेस किस तरह से हो सकते हैं? एक तो स्केलिंग करके हो सकते हैं, ज़ूमिंग करके हो सकते हैं, क्रॉपिंग करके हो सकते हैं, रोटेटिंग करके हो सकते हैं, फ्लिपिंग करके हो सकते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो सकता है, वर्टिकल फ्लिप हो सकता है। तो ऐसे अलग-अलग करके डेटा का साइज बढ़ा देना, और एक बार डेटा का साइज बढ़ गया, तो फिर हमारा डेटा अच्छा खासा होगा और मशीन लर्निंग की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो यहाँ तक तो ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस अपना होगा ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट को लोड कर देना, और फिर आगे की प्रोसेस करना। तो फिर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे ट्रेनिंग सेट, कुछ भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेट देता हूँ कि ट्रेनिंग सेट क्या होगा मेरा। तो ट्रेनिंग सेट क्या होगा, ट्रेन डेटा जन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी फंक्शन, जो हमने लास्ट टाइम यूज किया। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टरी का नाम देना होगा। तो डायरेक्टरी का नाम जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है कि ट्रेन पाथ एंड टेस्ट पाथ। तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे पहले, तो ट्रेन पाथ एंड टेस्ट पाथ। तो अभी ये ट्रेनिंग सेट है, तो हम इसको देंगे ट्रेन पाथ। ओके, अदरवाइज यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। ये हो गया ट्रेन पाथ दे दिया। टारगेट साइज, तो आप वहाँ पे वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, या फिर इसका साइज यहाँ पे लिख सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो अलग है, तो इसका 224 बाय 224 ये हमारा टारगेट साइज है, मतलब इमेज का साइज है। राइट, ये हो गया अपना टारगेट साइज। देन बैच साइज हमें देना है। तो बैच साइज हमने लास्ट टाइम 16 यूज किया, तो अब भी 16 ही करेंगे। एंड क्लास मोड, तो लास्ट टाइम भी यही सब यूज किया था, तो अब भी यूज करेंगे, तो कैटेगोरिकल। ओके। अ, अब अगर इसको कंपेयर करूँगा इस तरफ, तो वही सब हम उसी, देखो यहाँ पे मॉडल को कंपाइल किया हमने, एंड देन कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, यहाँ पे ऑप्टिमाइजर हमने एचजेडी यूज़ किया था, यहाँ पे एडम, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, मैट्रिक्स एक्यूरेसी। तो ये हमने एज इट इज़ यूज़ किया, कुछ चेंजेस नहीं किए। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये डेटा जनरेटर, ये रीस्केल वगैरह हो गई, यही सब पैरामीटर्स है, कुछ अलग नहीं है। फिर टेस्ट जनरेशन वही किया। फिर ट्रेनिंग डेटा का हमने फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी किया, और ये ट्रेनिंग डेटा डायरेक्टरी। अभी हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम बदले, बाकी कुछ नहीं। फिर टारगेट साइज हमारा इमेज विड्थ हाइट था, यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी। वो वहाँ पे उस टाइम हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किए थे। बैच साइज के लिए भी हमने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया था, अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर ली। और क्लास मोड कैटेगोरिकली है। तो यही सब मैंने किया है, और अभी ये भी वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, सेम थिंग विल बी देयर। तो फिर से इसको हम कॉपी कर लेंगे, एंड अगेन वी विल बी पुटिंग दिस लाइक दिस। एंड यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग सेट मैं इसको बोलूंगा टेस्ट सेट। टेस्ट सेट या वैलिडेशन सेट, कुछ भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पे ट्रेन डेटा जनरेटर से अच्छा है, ये टेस्ट में से आएगा, और यहाँ पे टेस्ट पाथ होगा ट्रेनिंग की जगह, उसके वेरिएबल बाकी सब सेम, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। Now, ये होने के बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को फिट करते हैं, क्लासिफायर डॉट फिट। अगर आप यहाँ पे इस वाले कोड में जाओगे, तो हमें भी वही सब कुछ है, तो क्लासिफायर डॉट फिट करना होगा। फिर स्टेप्स पर इपोक है, इपोक्स कितने हैं, वो वैलिडेशन डेटा कौन सा है, और यही पैरामीटर हमें अभी देना होगा। तो यही सब है, लेकिन मैंने अभी ये सब वेरिएबल चेंज किए हैं। देन दिस नंबर ऑफ ट्रेन सैंपल करके मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, मुझे मैन्युअली यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी। और बैच साइज जो है वो भी मुझे मैन्युअल वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले केस में
हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेन सैंपल्स और ये बैच साइज ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया था। तो अब डिफाइन नहीं किया तो मैं मैन्युअली वैल्यू डालूंगा उतना ही, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर से क्लासिफायर इक्वल्स टू मॉडल डॉट फिट, क्योंकि ये फिट करना है मॉडल। एंड देन यहाँ पे अब पहले तो क्या है कि किसको करोगे, ट्रेनिंग सेट, क्योंकि ट्रेनिंग सेट अपना ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। अभी वैलिडेशन डेटा का भी मैं देता हूँ नाम, तो वैलिडेशन डेटा मेरा टेस्ट सेट होगा, टेस्ट सेट, राइट। ये हो गया ट्रेनिंग सेट का काम, हो गया वैलिडेशन सेट का काम हो गया। इपोक्स मुझे बोलने कितने हैं, तो इपोक्स इक्वल्स टू, अब मैं 5 ही इपोक के लिए करूंगा, क्योंकि ज्यादा इपोक करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको ये रन करके दिखाना चाहता हूँ उसके ग्राफ्स वगैरह, तो मैं 5 इपोक के लिए ही करूंगा। सो फिर स्टेप्स पर इपोक मुझे देने हैं। तो ट्रेनिंग में हमें पता है कितने सैंपल्स है, 253 सैंपल्स, राइट। और बैच साइज कितना है, 16, तो डिवाइड बाय बैच साइज, दैट विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स पर इपोक। एंड देन वैलिडेशन के स्टेप्स कितने होंगे, वैलिडेशन स्टेप्स, तो वैलिडेशन के लिए टेस्टिंग के अंदर कितना डेटा है आपका, तो टेस्टिंग के अंदर आपको पता है 72 डेटा है, डिवाइड बाय 16 मतलब बैच साइज हो गया। तो ये डन। तो अब हमारा मॉडल यहाँ पे ट्रेनिंग को रेडी होगा, ट्रेन हो जाएगा इसका। वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड, तो हम मॉडल को सेव कर सकते हैं एंड उसके ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अब इसको, पहले हमने जो नॉर्मल स्क्रैच का किया उसको ट्रेन मॉडल डॉट एच फाइव का किया, फिर हमने इससे लिया, कहाँ से, टीचेबल मशीन से, वो केरास मॉडल डॉट एच फाइव हुआ। तो हम अब इसको सेव करेंगे ट्रांसफर मॉडल डॉट एच फाइव नाम से, सेविंग द मॉडल करेंगे, मॉडल को सेव कर देंगे। मॉडल को सेव करने के लिए आपको इंपोर्ट एच फाइव, सॉरी एच फाइव पी वाई लाइब्रेरी चाहिए, एंड देन मॉडल डॉट सेव, एंड देन इसको हम नाम देंगे ट्रांसफर अंडरस्कोर मॉडल डॉट एच फाइव, राइट। हो गया। तो मॉडल भी अभी यहाँ पे सेव हो जाएगा। और फिर हम ग्राफ भी देखेंगे, परफॉर्मेंस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी है, क्या है, वो देख लेंगे। एंड फॉर दैट पर्पज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी लगेंगी, जो कि हमने यहाँ पे ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन कॉल करेंगे अब। सो यहाँ पे सेम चीज़ें वही करेंगे हम। तो बेटर वे मैं यहाँ से कॉपी मार देता हूँ पूरा कोड, जो प्लॉट करना है उतना सब टाइप करने से अच्छा है। सो आई विल बी कॉपिंग दिस एंड पार्ट ऑफ दिस, यही सब लगेगा हमें, कुछ अलग नहीं लगने वाला। तो दिस लाइंस कॉपी एंड पेस्ट। तो यहाँ पे classifier dot history accuracy, then validation accuracy, then this is the accuracy of model, या फिर CNN बोलेंगे, epochs कितने हैं, and then accuracy x level y level, then loss, and then validation loss, that's it, उतना ही है। तो ये इससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। एडिशनली आप उसके लीजेंड्स वगैरह, उसके कलर्स वगैरह चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप उसमें कुछ ग्रेड वगैरह चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने ग्राफ इसके अंदर। सो नाउ एवरीथिंग इज रेडी अराउंड दिस कोड इज अगेन अराउंड 187 लाइंस ऑफ कोड। बट नाउ इसका जो परफॉर्मेंस है वो हमारा जो ये जो मॉडल था ना, हमने लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच किया, उससे बेटर होने वाला है। वाई बेटर, बिकॉज ये हम यूज कर रहे हैं VGG16 प्री ट्रेन मॉडल, जो कि एक्सपीरियंस्ड बंदा है, प्रीवियस वाला फ्रेशर था, तो उससे उतना काम तो होगा नहीं। तो हम अब इसको रन करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, और ये जब कुछ रन होगा डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगेगा। ये यहाँ पे उसका ट्रेनिंग चालू हुआ। epoch first is under process, 15 steps, and the starting में उसका accuracy यहाँ पे 53% के around you see here, and this number is now increasing 54 in the first epoch itself, and the loss is around 1.4850, huge loss. But hopefully that will be improved at the end. That's what we are expecting.
लेट्स सी, बट एटलीस्ट जो 65% एक्यूरेसी आई थी हमारे प्रीवियस मॉडल की, तो हम ये कोशिश करेंगे कि क्या उससे बेटर इसका परफॉर्मेंस हो सकता है. सो इन दिस नाउ द लॉस is actually showing the increase instead of decreasing, and the accuracy also quite constant. But we'll check what happens in the second epoch. Now the second epoch under process, validation accuracy we got 68%, that's great. And now the loss has dropped below 1, so it's the good sign. Accuracy is now 66% right now. So again the model is going and heading towards the target, and it's correct as it's going towards the target 65%. And the validation accuracy is impressive in the at the end of first epoch also 68%, and that we got actually in the last epoch in case of previous model, but this time the validation accuracy is quite impressive. Again it's around 65%. The accuracy may increase. Okay, now validation accuracy has increased to 78% at the end of first epoch. You see here 78%, it has touched to 78%, and this number is impressive. 86% accuracy currently in the third epoch itself. At least we should train it for 25 epochs, but as it will take lots of time, so I will be training only for 5 epochs, but still the performance is quite impressive. In the previous model it never touched 80% accuracy in learning from this guy. Definitely when we trained on teachable machine it got the 80 plus accuracy, but after 50 epoch, 50 number of epochs, this time on the third epoch itself we are getting 83% accuracy. That's very interesting thing. And now the fourth epoch will be on the process. Now here you see the accuracy 83% and it's dropped little, and the validation accuracy 79%, but still it is in the 80s range, so it's interesting to know. And the final outcome, at least we can say the accuracy can be in 70s or 80s at the end of fifth epoch. But if you train it for the 25 number of epochs, in that case we may get accuracy more than 95 plus, 95% plus. So that can be the possibility if we use the VGG 16 model. So it's currently 85%, and loss is significantly dropped. Even टीचेबल मशीन के साथ इतना कम लॉस नहीं आया था. टीचेबल मशीन पे हमने जब काम किया तो उसका जो लॉस था वो 0.4 के अराउंड था, ये 0.2 तक नीचे आया. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. वैलिडेशन एक्यूरेसी 90 को टच हो चुके हैं यहाँ पे, एंड एक्यूरेसी इज ऑल्सो नाउ शोइंग इन टर्म्स ऑफ 90s. लॉस डिक्रीज हो रहा है, इट्स इन 20s. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है. दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो एट द एंड ऑफ फिफ्थ इपोक ये 90 को टच हो रहा है, तो इट्स रियली ग्रेट थिंग. And loss is also significantly reduced. Accuracy is in 90s currently. Now it should save the model, and at the end you see वैलिडेशन एक्यूरेसी की अगर आप बात करोगे ना, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, ये 5 इपोक हमारे कंप्लीट हुए. वैलिडेशन लॉस काफी कम है, काफी कम 0.13. सो इट्स वेरी मच क्लोज टू जीरो, एंड दैट्स द टारगेट एक्चुअली. और ये जो वैल्यू यहाँ पे मिली है वो टीचेबल मशीन 50 इपोक के बाद भी नहीं दिया था. वॉट एवर वी हैव ट्रेन ऑन द टीचेबल मशीन, जो कि प्रोग्रामिंग लेस गूगल का प्लेटफॉर्म था, ये जो वैल्यू यहाँ पे मिली है वो टीचेबल मशीन ये नहीं दे पा रहा था इतनी वैल्यू. सेकेंडली अगर आप एक्यूरेसी की बात करोगे, 90% एक्यूरेसी ये टीचेबल मशीन के थ्रू भी अचीव नहीं हुआ था. और वैलिडेशन एक्यूरेसी अगर आप देखोगे 98%. सो दैट्स द पावर ऑफ ट्रांसफर लर्निंग. And the loss is also 0.2, which is again very less. और ये टीचेबल मशीन से भी कम है. तो टीचेबल मशीन पे हमें जो 50 टाइम ट्रेन करने के बाद जो रिजल्ट मिला, जो परफॉर्मेंस मिला, उससे बेटर परफॉर्मेंस we have achieved using transfer learning and VGG16 model. So that's the power of use of transfer learning and pre-trained models. तो जो कि एक्सपीरियंस बंदों को यूज करने का ये फायदा होता है. तो हर जगह होता है, मतलब
तो यहाँ पे भी ये एक्सपीरियंस मॉडल है जो कि इमेज को क्लासिफाई करने में ऑलरेडी उसको महारत हासिल है। तो दैट मॉडल इज नाउ वेरी मच गुड टू प्रिडिक्ट दिस थिंग जो हमारा है उसके लिए। और अगर आप इसके ग्राफ्स देखोगे, सिर्फ 5 इपोक्स के लिए हमने किया, लेकिन ये अगर 25 इपोक्स तक जाएगा तो ये सैचुरेट कर देगा 100% एक्यूरेसी के अराउंड, वेरी मच क्लोज टू 100% एक्यूरेसी। सो दिस इज द एक्यूरेसी एंड इट इज शोइंग द or it is increasing tendency, so it will further increase even after the fifth hip। अगर आगे मैं चलाऊंगा ट्रेनिंग प्रोसेस तो इट विल बी फर्दर इंक्रीज, इट कैन बी फर्दर इंक्रीज्ड। तो इस तरह से वो आगे चलता ही जाएगा। तो दैट्स गुड साइन कि ये VGG16 का एडवांटेज। एंड अगर लॉस का देखो आप तो ये डिक्रीजिंग टेंडेंसी है इसका, तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहा है लॉस। ये ब्लू वाला जो होता है वो ट्रेनिंग का होता है और ये जो ऑरेंज कलर होता है वो टेस्टिंग का होता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि टेस्टिंग का परफॉर्मेंस ट्रेनिंग से बेटर कैसे आया? तो ये इसलिए आया है, एक्चुअली मैंने टेस्ट सेट में भी ट्रेनिंग में से ही सैंपल कॉपी करके रखे, वो कुछ अलग नहीं रखे। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में सेम सैंपल है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर आ रहा है टेस्टिंग का। अदरवाइज ये थोड़ा खराब आता टेस्टिंग का, जो अभी 98% एक्यूरेसी मिली है तो वो ट्रेनिंग से थोड़ी खराब आती अगर मैं अलग इमेजेस यूज करता, लेकिन स्टिल इट्स टोटली ओके। तो इस तरह से हम इस मॉडल को ट्रेन करके वी कैन सेव दैट मॉडल एज दिस ट्रांसफर मॉडल। so now it's okay, and this is the performance which is actually the eye catching and impressive performance we got। so same thing, exactly same thing आप रिपीट करोगे अलग मॉडल। जैसे गूगल नेट होगा तो यहाँ पे गूगल नेट के फंक्शंस आएंगे और ये सब कुछ यहाँ पे गूगल नेट को इनिशियलाइज किया जाएगा और बाकी सब एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप अलग अलग मशीन लर्निंग के, अलग अलग डीप लर्निंग के जो मॉडल्स है ट्रांसफर लर्निंग के लिए ट्राई करके VGG16 कितना एक्यूरेसी दे रहा है, फिर एलेक्स नेट कितना दे रहा है, फिर गूगल नेट कितना दे रहा है, मोबाइल नेट का कितना आ रहा है, वो आप कंपेयर कर सकते हो, बट द स्टेप्स आर गोइंग टू बी सेम। सो दिस इज वन अप्रोच ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्री ट्रेन मॉडल। तो मैं और एक बात कर रहा था कि अगर क्या होगा अगर हमारे पास ऑलरेडी जो मॉडल है उसी मॉडल को हमें प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करना है, एंड वो जो ऑब्जेक्ट हमें क्लासिफाई करना है वो हमारे नोन है, मतलब 1000 जो कैटेगरीज है उसी में से कुछ तो क्लासिफाई करने के लिए यूज करना है। तो इन दैट केस हमें इसको दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं जैसे हमने यहाँ पे किया, या फिर उसके कुछ लेयर्स में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो है, वही मॉडल को यूज करना है। तो इन दैट केस हम उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर वो ट्रांसफर डॉट पी वाई या फिर प्री ट्रेन्ड, ये ट्रांसफर ही नाम देता हूँ और कुछ नाम नहीं, तो यहाँ पे भी वही सब कुछ होगा। तो उसके लिए भी हमें वही लाइब्रेरीज वगैरह लगेंगी और कुछ अलग लग सकता है। तो दैट्स व्हाट वी विल बी रिक्वायरिंग, एंड उसके हिसाब से हम आगे यूज करेंगे। तो फॉर दिस विल टेक सम लाइब्रेरीज फ्रॉम केराज डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज import लोड इमेज। नाउ ये लोड इमेज फंक्शन यूज होगा इमेज को लोड करने के लिए, नया इमेज को लोड करने के लिए। एंड देन फ्रॉम एरे में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अलग फंक्शन यूज करेंगे, केराज डॉट प्री प्रोसेसिंग समथिंग रॉन्ग, आई थिंक आई हैव मिस दिस p डॉट इमेज import mg2 एरे फंक्शन जो उसको एरे में कन्वर्ट, क्योंकि आप हम डायरेक्टली इमेज देने वाले उसको एरे में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे हम रिकॉग्निशन का भी देखने वाले हैं। एंड देन वो केरास के VGG16 वाले दो मॉडल्स हमें लेने पड़ेंगे, एंड उसको कॉपी या अदरवाइज मैं यहाँ से उसको उठा देता हूँ सीधा कॉपी पेस्ट। तो ये VGG16 एंड प्री प्रोसेस इनपुट ये दोनों लगेंगे, हम इन दोनों को यहाँ पे ले लेते हैं। एंड प्रिडिक्शंस भी करने होंगे हमें, तो प्रिडिक्शंस को भी डिकोड करना होगा। फ्रॉम केरास डॉट एप्लीकेशंस
डॉट VGG16 import the code predictions, तो सो दैट प्रिडिक्शन कर पाए हम। हम्म, तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्री प्रोसेस इनपुट, VGG16 मॉडल और डिकोड प्रिडिक्शन ये सारे यहाँ पे लोड कर लिए। तो अब यहाँ पे बात होती है कि हमें सिर्फ इमेज को लोड करके देना है, क्योंकि मॉडल तो लोड करना है, तो पहले हमें इमेज चाहिए। तो इमेज इक्वल्स टू लोड अंडरस्कोर इमेज। तो लोड इमेज के अंदर यहाँ पे पाथ देना होगा। तो ये मेरे पास डॉग डॉट डॉग की इमेज है, दिस इमेज। तो इसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये ट्रांसफर के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ नाम डॉग, ओ सॉरी, डॉग डॉट जेपीजी। ये इमेज को लोड करो और इसको प्रेडिक्शन करना है अभी। देन इसको अभी एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी वहां पे इमेज टू एरे फंक्शन ले लिया है, क्योंकि जैसे ये जो है ना, ये टेस्टिंग वाला पार्ट है जो हमने टेस्टिंग में किया ना। यहाँ पे जो टेस्टिंग वाला कोड था, पहले हमने ये मॉडल लोड किया, फिर इमेज को ओपन किया, फिर साइज उसका डिफाइन किया, फिर उसको ये एरे में कन्वर्ट किया, फिर नॉर्मलाइज किया। ये सब अभी यहाँ पे करना है, क्योंकि हम अभी मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यूज करने वाले। तो इसका जो साइज है, एक तो हम उसको बाद में रीसाइज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टारगेट साइज दे दो। इसका टारगेट साइज 224 बाय 224 डाल दो, 224 बाय 224 हो गया। एंड देन इसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए इमेज ही वेरिएबल लेता हूँ मैं, एंड यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन इमेज टू एरे। और किसको करना है? तो इस इमेज को करना है एरे में कन्वर्ट। तो ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक बार ये एरे में कन्वर्ट हो गई तो बेसिकली उसको देने के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि हमने एक डेटा करके वेरिएबल लिया था, फिर उसमें 1, फिर 224 बाय 3 इस तरह से लिया था। तो यही सब लेंगे हम, यही यहाँ पे करने वाले हैं। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, बट उसको मैं इमेज ही वेरिएबल का नाम रखता हूँ। एंड देन इमेज को रीशेप कर देंगे, इमेज डॉट रीशेप। एंड देन यहाँ पे फर्स्ट आर्गुमेंट जो है दैट विल बी 1, एंड देन सेकेंड विल बी 224 एंड 224। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं क्या करूँगा, शेप ऑफ 0 कर लूँगा, मतलब पहला आर्गुमेंट विड्थ उसका। एंड देन इमेज डॉट शेप उसका सेकंड आर्गुमेंट, दैट मींस इट विल बी 1। एंड देन ये इसलिए क्योंकि समटाइम्स क्या होगा कि चैनल फर्स्ट होगा तो 3, 224 बाय 224 होगा, चैनल लास्ट होगा तो 224 होगा। तो वो अलग अलग हो सकता है, इसके वजह से हम डायरेक्टली उसको इस तरह से ले लेंगे, सो दैट कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमेज डॉट शेप एंड यहाँ पे 2, जो भी होगा 2 मतलब चैनल हो सकता है या फिर हाइट हो, जो भी होना है हो दो, वो एक ही आएगा। तो इस बार ये हो गया। तो उसके बाद हमने देखा था कि हमने उसको ये किया था, व्हाट, हमने उसको नॉर्मलाइज वगैरह किया था। तो वो सब हम यहाँ पे करते नहीं बैठेंगे, यहाँ पे प्री प्रोसेस इनपुट फंक्शन ले लेंगे। वो प्री प्रोसेस इनपुट वीजीजी मॉडल को जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में इनपुट को कन्वर्ट कर देगा। तो ये इमेज लेंगे हम यहाँ पे, और इसको हम प्री प्रोसेस इनपुट के थ्रू पास करेंगे, और इमेज बस हो गया। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, CNN यहाँ पे इसको ये नॉर्मलाइज किया, यहाँ पे ये सब कुछ किया। तो ये सब कुछ अभी हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली उसको प्री प्रोसेस करेंगे, और क्योंकि ये VGG16 के हिसाब से ही उसको प्री प्रोसेस करेगा। और ये हो गया। नाउ यहाँ पे मॉडल की जरूरत है हमें। तो मॉडल हम कोई सेव किया हुआ मॉडल नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे VGG16 वाला मॉडल। और अगर आपका जो प्रीवियस कोड है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वेट्स वगैरह कौन से लेने हैं, ये टॉप वगैरह फॉल्स कर दो, वो इंक्लूड मत करो, लास्ट वाले लेयर्स मत लो, वो हम खुद से ट्रेन करेंगे। ये सब कुछ हमने यहाँ पे इसको बताया था। अब हम इसको कुछ नहीं बताएंगे, पूरा का पूरा मॉडल ले लो और उस पे प्रेडिक्शन कर लो। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए यू कैन यूज लेट्स से प्रेड वेरिएबल, जो भी उसका प्रेडिक्शन आएगा, और मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, दैट्स इट। और इसको दे दो अभी ये इमेज इनपुट। तो अब ये प्रेडिक्ट करेगा कि ये क्या है। और अब इसका लेबल, क्योंकि प्रेडिक्शन में आएगा कि इसका क्या है, मतलब उसका आएगा कि वो सारे 1000 नंबर ऑफ उसके वैल्यूज आएंगे, प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज। तो हमें 1000 वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो वो हमें लेंगे, फिर से उसमें वैल्यूज आएंगे, हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेबल। वो डॉग है,
वो कैट है, वो जो कुछ भी है वो हमें चाहिए। तो फिर वो हम यहाँ पे लेंगे लेबल इक्वल टू जो भी लेबल है वो डिकोड प्रेडिक्शंस, और जो ये प्रिड है ना उसको, ये प्रिड वेरिएबल को डिकोड करेगा ये। तो यहाँ पे लेबल मिलेंगे। तो अभी हमें लेबल क्या चाहिए ना, टॉप का जो है वो एक नंबर का उसको चाहिए हमें, ये सॉर्ट होके आएंगे। तो ये जीरो जीरो एक्चुअली टू डायमेंशनल थिंग होगा, तो जीरो जीरो डबल उसका मतलब एरे के अंदर एरे होगा। तो यहाँ पे हमें उसका लेबल मिलेगा, पहला वाला लेबल कौन सा है वो, दैट वी विल गेट लेबल। एंड वंस वी गेट द लेबल, एक बार हमें लेबल मिल गया तो उस लेबल के बेसिस पे हम वो लेबल हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे कि क्या है। सो प्रिंट द लेबल, दैट्स इट, बात खत्म होती है यहाँ पे। तो एक बार यहाँ पे लेबल प्रिंट हो गया तो इट विल बी प्रिंटिंग व्हाट दिस लेबल कंटेन्स एंड इट्स एक्यूरेसी। बेसिकली क्या होता है कि लेबल उसका एक्यूरेसी कितना, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी प्लस उसका नेम, डॉग है कैट है वो प्रिंट करता है। इस तरह से वो होगा। आप अगर अब इसको रन करोगे तो क्या होगा, आप ये बोलोगे कि ये एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि हमने इसको डायरेक्टली ट्रेन कर लिया, ठीक है। तो ये जो VGG16 है, जैसे हमने देखा कि ये मॉडल यहाँ पे सेव होता है, ट्रांसफर मॉडल या फिर ट्रेन मॉडल या फिर केरास मॉडल, ये हमने ट्रेन कराया फिर सेव किया। तो ट्रांसफर लर्निंग के वाले कोड में भी हमने देखा कि इस मॉडल का 90% पार्ट तो हमने एज इट इज यूज किया। तो फिर वो आया कहाँ से, बाय सिंपली लोडिंग दिस लाइब्रेरी, वो उसका सारे वेट्स आए होंगे। या फिर अगर आप देखोगे ना उसका साइज क्या होता है, हमने ये छोटा सा किया ट्रेन मॉडल जो हमने फर्स्ट किया था, इसका साइज है 10 MB, 10 MB इस मॉडल का साइज है। फिर आज हमने जो ट्रांसफर का किया उसका साइज है 56 MB, इस वाले मॉडल का, छोटा नहीं है ये, इट्स साइज इज 56 MB। और ये जो है वो है 10.7 MB। और केरास मॉडल ये छोटा बनाता है गूगल, वो है 2.33 MB। तो आप यहाँ पे अगर बात करोगे कि यहाँ पे हम ट्रांसफर मॉडल यूज कर रहे हैं, तो ये VGG16, तो अगर ये 1000 कैटेगरीज को अगर ट्रेन है, अगर दो कैटेगरी को ट्रेन करने से 57 MB का मॉडल बन रहा है, तो 1000 कैटेगरी को जो मॉडल ट्रेन है वो कितना बड़ा होगा, ऑब्वियसली काफी बड़ा होगा, 500 MB के अराउंड ही होगा। तो वो आएगा कहाँ से, वो कहाँ से, सिंपली बाय लोडिंग दिस लाइब्रेरी वो 500 MB को लोड कर लिया उसने। तो ऐसे नहीं है। तो जब भी आप इस मॉडल को यहाँ पे लोड करोगे और आपके कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम जब भी आप इसको यूज करोगे, तो वो 500 MB डाउनलोड करेगा। और 500 MB डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसको यूज करोगे तो उसको यूज में लाया जाएगा। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर लर्निंग के टाइम पे भी वही हुआ था, उसने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था और तब मैं जाके उसको, लेकिन इस वाले केस में ये जो बेसिस पूरा जो मॉडल है ना, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया है। तो अब मैं उसको डाउनलोड का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा कि वो ऑटोमेटिकली किस तरह से डाउनलोड करता है। तो जब इसको हम रन करेंगे तो इट विल बी लोडिंग द लाइब्रेरीज एंड इट विल से कि ये जो मॉडल है वो डाउनलोड नहीं हुआ है। तो ये देखो इसका साइज इतना बड़ा है और ये यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस ने चालू कर लिया, और ये बोल रहा है कि अराउंड इसमें 5 मिनट्स का डाउनलोडिंग टाइम लगेगा। तो ये जब डाउनलोड होगा तब जाके ये प्रेडिक्शन करेगा, और जब ये कंप्लीट डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा तो ठीक है, इसको डाउनलोड होने देते हैं हम लोग, या फिर इट मे टेक लार्ज टाइम ऑल्सो, अदरवाइज या वी कैन सी हाउ मच टाइम विल इट टेक। आई थिंक इट विल टेक लार्ज टाइम बिकॉज ये जो है ना इसमें एक डिजिट कम है। ये जो चल रहा है प्रोसेस यहाँ पे, ये जो टोटल आउट ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में इसमें एक डिजिट कम है, सो इट विल टेक लार्ज टाइम। इसको पहले ये 1 तक रीच करना पड़ेगा, देन इट विल बी डूइंग। सो देखते हैं हम डाउनलोड, तब तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि क्या हमने यूज़ किया है, और अगर तब तक डाउनलोड होता है तो ठीक है, अदरवाइज विल कंक्लूड दिस सेशन। Okay, so we have seen the transfer learning in today's session. So transfer learning is all about transferring the learning of the some another model on some different thing. तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर रहे किसी और मॉडल से अपने किसी और मॉडल के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफर लर्निंग। तो ट्रांसफर लर्निंग के दो अप्रोच हो सकते हैं, एक तो
आप जो मॉडल है वो जो कि 1000 डेटा सेट पे ऑलरेडी ट्रेंड है, अगर उसी में से कोई ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है तो मॉडल को डायरेक्टली यूज करो। उसको फिर से दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है नए डेटा के लिए। डायरेक्टली जो है उसी तरह से उसको यूज में लाओ। दैट्स द सिंपल थिंग। और अगर आपके पास ऐसी कुछ ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि अभी यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट करना था, 1000 जो कैटेगरीज है इमेज नेट के अंदर, उसमें ब्रेन ट्यूमर तो डेफिनेटली नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, एंड सम ऑब्जेक्ट है। तो वो उसमें वो है नहीं, तो उसको फिर हम किस तरह से ट्रांसफर मॉडल यूज कर सकते हैं? तो हम इन दैट केस जो लास्ट वाला जो टॉप लेयर होती है उसमें जहाँ पे उसके प्रिडिक्शंस होते हैं, प्रिडिक्शन मतलब जहाँ पे कैटेगरीज होते हैं, 1000 न्यूरॉन्स होंगे इन दैट केस, तो उन सबको हटा दो ना, वो सब हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ लास्ट वाली चीज, ओनली दैट थिंग। सॉरी, उसके पहले वाला चीज। तो हम क्या करेंगे, जो पहले जो कन्वोल्यूशन है, रेलू है, पूलिंग है, वो सारे के सारे एज इट इज यूज कर लेंगे। उसका जो भी ट्रेनिंग है, जो कुछ भी हुआ है, वो एज इट इज यूज कर लेंगे। और जो लास्ट वाला है उसको मॉडिफाई करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो उस हिसाब से हमने सारे लाइब्रेरीज यहाँ पे इस तरह से लोड कर लिए। फिर हमने यहाँ पे इमेज के साइज क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा कहाँ से आएगा, ये सब कुछ ले लिया। और वीजेजी मॉडल को यहाँ पे इनिशियलाइज हमने कर लिया। सो वंस द वीजेजी मॉडल इज इनिशियलाइज्ड, फिर हमने जो प्रीवियस लेयर्स थी उस मॉडल की, उस लेयर्स को हमने बताया कि दीज लेयर डू नॉट ट्रेन ऑल द लेयर्स, ओनली ट्रेन द लास्ट फ्यू लेयर्स। तो वो हमने बताया। फिर हमने आउटपुट जो फ्लैटनिंग लेयर उसमें ऐड कर ली, और दैट फ्लैटनिंग लेयर we actually got this input, and then the softmax layer, और ये दो न्यूरॉन्स हमने इंस्टेड ऑफ 1000 यहाँ पे हमने सिर्फ दो ऐड किए। एंड वो एक्स जो इनपुट है वो उसके थ्रू जाएगा, एंड एट द एंड वो मॉडल यहाँ पे आएगा। तो ये मॉडल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एंड देन बाकी सब एज इट इज मॉडल को हमने यहाँ पे बिल्ड किया, कंपाइल किया। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्टिमाइजर यूज करके आप उसका डिफरेंट परफॉर्मेंस अलग अलग चेकआउट कर सकते हो, एक्यूरेसी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। फिर हमने ट्रेनिंग का डेटा जनरेट किया, फिर हमने टेस्टिंग डेटा जनरेट किया, ट्रेनिंग सेट हमने लिया, इमेज ऑगमेंटेशन यहाँ पे हमने देखा उस तरह से। एंड एट द एंड हमने क्लासीफायर को फिट किया, नंबर ऑफ इपोक्स हमने 5 रखे सिर्फ, एंड 5 इपोक्स को ही हमने मॉडल को ट्रेन किया। एंड एट द एंड आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल हमने सेव कर दिया मॉडल को। तो ये हो गया, उसके ग्राफ्स वगैरह आ गए। ये एक अप्रोच होगा। दूसरा अप्रोच मैंने बोला कि मुझे डॉग को ही क्लासीफाई करना है, डॉग डॉट जेपीजी जो कि यहाँ पे है, जो कि डॉग ये कैटेगरी है किसके अंदर, वीजीजी 16 का जो ट्रेन हुआ है, जो इमेज नेट डेटा सेट उसके अंदर डॉग है, डॉग पे ऑलरेडी वो ट्रेन हो चुका है। तो मुझे डॉग ही क्लासिफाई करना है, तो फिर मुझे मॉडल में कुछ चेंजेस नहीं करने। सीधा डॉग को उठाओ, उसको एरे में कन्वर्ट करो, उसको रीशेप करो इस फॉर्मेट में, फिर उसको प्री प्रोसेस करो, नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये कर लेगा, और डायरेक्टली बीजीजी 16 मॉडल ले लो और उसको प्रिडिक्शन को दे दो, सिंपली प्रिडिक्शन को दे दो। उससे उसको अभी कुछ लेयर्स को वगैरह चेंजेस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डॉग को ऑलरेडी ट्रेंड है। फिर वो प्रिडिक्शन देगा, और जो भी लेबल आएगा वो लेबल को हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। सिंपली वी वांट टू प्रिंट दैट लेबल, कि जो भी उसका नेम है, जो कुछ भी है, वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, दैट्स इट। तो ये सब कुछ हो गया, एंड आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, ये कुछ तो नया यहाँ पे आया है शायद, पर रिजल्ट आने के बाद ये एरर आया है शायद। ओके ओके, ये यहाँ पे उसका रिजल्ट आया, उसने जो आइडेंटिफाई किया है इज दिस वन। Okay, great Dane. I think it's the type of some dog. I think Great Dane maybe some type होगा डॉग का। तो वो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा डॉग है, आई थिंक। तो आई थिंक ग्रेट डेन इज द टाइप ऑफ डॉग और सम अनदर एनिमल, आई डोंट नो। सो व्हाट इज ग्रेट डेन? ओके, सो दैट्स व्हाट इट हैज़ आइडेंटिफाइड। एंड ठीक है, तो ओके ओके, इट्स डॉग ब्रीड एक्चुअली। ओके, तो ये हाँ डॉग ही है, लेकिन वो एक ब्रीड है डॉग का। क्रांति मैडम हैज रिस्पॉन्डेड टू इट। एक्चुअली आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस। ओके फाइन। तो उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा डॉग है, नॉट ओनली द डॉग बट ये उस ब्रीड का डॉग है। तो वो भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया, एंड उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे उसने प्रिंट कर लिया। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग। So in that case, this transfer learning is more having advantage over the normal traditional uh,
learning from the scratch approach. As we seen that the accuracy that we got, it was more than 90% for the brain tumor same data set, and the performance was better than, even better than the teachable machine. So that was the most important thing. तो अब आप पूरी तरह से रेडी हो डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट हैंडल करने में, और यहाँ पे आप कुछ भी अब कर सकते हो। आपको ट्रांसफर लर्निंग भी अब आता है, टीचेबल मशीन भी आता है, एंड लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच भी आता है। तो बहुत सारे अप्रोचेस आपको आते हैं। तो अब यहाँ पे आप ब्रेन ट्यूमर, प्लांट लिप डिसीज डिटेक्शन, लंग कैंसर डिटेक्शन, किडनी डिसीज डिटेक्शन, थायराइड डिटेक्शन, फ्रूट क्लासिफिकेशन, एनिमल डिटेक्शन, अगर आपको जनरल कुछ करना है, फ्रूट्स आइडेंटिफिकेशन या फिर एनिमल वगैरह डिटेक्शन वगैरह करना है, तो आप ये वाला कोड यूज़ करोगे, सिंपल इतना। ये 20 लाइन का कोड है, नॉट 20, अगर मैं इसके स्पेसेस हटा दूंगा तो ये 10 लाइन का ही बन जाएगा, 10-15 लाइन का। तो इसमें आप 1000 कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी उसमें अंदर कौन से कैटेगरीज है, आप इमेजनेट अगर गूगल पे सर्च करोगे इमेजनेट, तो आपको मिल जाएगा कितने नंबर ऑफ कैटेगरी, वो 1000 जो कैटेगरीज है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। उसके अंदर के कौन कौन से नेम्स है, जैसे अभी ये डॉग के अगर कुछ अलग ब्रीड्स है, या फिर प्लांट के वैरायटीज हो सकते हैं, फ्रूट्स के टाइप्स हो सकते हैं, वो सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स द एंड फॉर टुडेज सेशन, and we will wait in the chat if you are having any queries and doubts regarding the today's session.